you hit that website, what happened? What is going to be happened? So how will you take care of your website? If you are a developer and you are working with a company that develop website and that is fully engaged in the web development or web designing like a job. So if you are working with that company, how will develop your website and what you have to know and how to make this website public. So basically when we hit actually we start with that web address. The address is like this: http or https with colon / www and then google.com. This is the web address. It may be with the http or maybe with the https. The difference is only that if we browse with http, this is security less, that means not secure channel. And if we are browsing with the https, that denotes it's a secure channel. Whatever data is transferred from my computer to that web address or web server, that is going to be secure. So Google giving you the secure way to browse their website or solve their website. So this is the web address. And when we hit this on our from our browser with this address, that google.com. So whenever we hit google.com, this internet world, that is network of networks, connect this domain. This is actually a domain name. So if I want that I have one domain, so we have to purchase that domain. Definitely Google also purchase that domain, that is google.com. Likewise, if we want to create our own domain, we want to purchase our own domain. So that domain name should be unique, that is not duplicate in nature anywhere in the world. And then the extension one, that is .com, .in, .co, .in, like that. There are lots of extension. So when we hit with this google.com, what happened? This will search this domain on the internet. And search start from your provider. Provider is such like आप जिससे इंटरनेट ले रखे हो. तो आई होप आप जानते हो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर कौन है. एनीवन कैन रिप्लाई. हु इज योर इंटरनेट प्रोवाइडर? Jio, Airtel, like that. Good. So basically your mobile company is your provider. Other than mobile company, there are lots of provider from which we can get access of the internet, and for that you are paying that. That means it's all the, you can say, having one agreement between you and your provider, that you pay for that particular internet services which they provide to you. Just like this is a lease, we are having the lease of that internet providing with certain amount of data we can access. So when we enter this google.com, first this google.com domain will be searched over the internet, and that start from your provider having one gateway. This is known as DNS gateway, that is domain naming search gateway, service gateway, and where this domain is mapped with IP address. Actually, the domain doesn't exist anywhere physically. This is the logical name, and the actual address is IP address. So definitely google.com having one IP address, because in the network, every computer known by its IP address. So physically, yes. So physically, any computer which is on the network, that is known by its IP address. So ये network का पूरा फंडा है, but basically I am giving you the information how this website works. So definitely your gateway is mapped with
gateway is mapped with your domain name with this IP address. So that is known as DNS address. So IP address is the physical address. एंड आईपी एड्रेस कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होता है, आप अपने कंप्यूटर का, अपने लैपटॉप अगर स्टार्ट कर रखा है तो लैपटॉप पे देख सकते हो कि अभी आपका जो आईपी एड्रेस है जो आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपको प्रोवाइड किया है वो आप देख सकते हो. इट्स अ 4 ऑक्टेट एड्रेस, लाइक जस्ट लाइक जैसे हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में एक नंबर होता है, तो नंबर याद करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम नंबर के साथ क्या याद करते हैं, उसका नाम याद करते हैं. सपोज सम Aditi is there, so if I know the Aditi mobile number, so I have to save like that. The same fashion there is a DNS address. So google.com is mapped with the IP address. Suppose that IP address is like this: 103.20.12.20. This is the IP address. This is the IP4 address. This is the addressing style of internet computer known with this physical IP address. And there is IPv4 version, IPv6 version also, where the IP stand for like this. इस तरह से हम लोग का बहुत सारा नंबर आता है, तो इस तरह से IP6 एड्रेसिंग मैप्ड होता है. तो ये है IPv4 और ये है IPv6 एड्रेसिंग मोड. तो इस तरह से बहुत बड़ा नंबर होता है IPv6 का, और IPv4 है तो इस तरह का एक नंबर आपको डिस्प्ले होगा. तो अगर हम ये जो हम जब अगर google.com मारते हैं, इंटर करते हैं, तो ये क्या करता है, इस आईपी को सर्च करता है, क्योंकि आपका गेटवे, आपका नियरेस्ट गेटवे इसको बताता है कि इस आईपी को खोजो, दुनिया में कहाँ रखा हुआ है ये आईपी. इस आईपी का जरूर एक कंप्यूटर होगा जो कहीं ना कहीं दुनिया में रखा हुआ होगा. तो इस आईपी को खोजता है और इस आईपी पे उसको मिलता है ये लॉजिकल एड्रेस का एक सर्वर. तो वो क्या करता है, आपका ये पूरा रूटीन लिखा हुआ है, पूरा सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है. जस्ट आई एम गिविंग द लॉजिकल व्यू पॉइंट विद लॉजिकल कंसेप्ट ऑफ दैट वर्किंग. सो व्हेन दिस आईपी इज फाउंड ऑन द इंटरनेट एंड इट इज वेरी फास्ट, आपको मिली सेकेंड्स में ये सर्च कर लेता है कि ये एक्चुअल आईपी एड्रेस कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, कहाँ है. ये एकदम बहुत फास्ट आपका काम करता है, अकॉर्डिंग टू योर स्पीड नेचर ऑफ योर प्रोवाइडर, ये आपको सर्च कर लेगा. Then that IP address having one wave server. इसमें इसके पास क्या होगा, उसके पास इंस्टॉल्ड होगा एक वेब सर्वर. वेब सर्वर जो कि वेबसाइट को सर्व करता है. जो भी वेबसाइट हम बनाएंगे उसको उस वेब सर्वर पे इंस्टॉल करना पड़ता है. इंस्टॉल को बोलते हैं होस्ट करना. तो वेबसाइट इस वेब सर्वर पे होस्ट किया हुआ रहता है, उसको बोलते हैं होस्टिंग. So I'm giving you some of the technical concept which is running behind it, and we have to know that, because if we do not know that concept, we are not able to create a good website, because you know the things what is working behind that website. So website need a one web server. ये वेब सर्वर कहाँ होगा, तो ये जो आईपी जिस कंप्यूटर पे है, जिस फिजिकल कंप्यूटर पे ये आईपी है, वहां पे एक वेब सर्वर होगा, और इस वेब सर्वर पे ये वेबसाइट होस्ट किया हुआ हो. फिजिकली ये है, लॉजिकली नहीं बता रहे, ये फिजिकल है. लॉजिकल बस ये एड्रेस है, ये फिजिकल एड्रेस है. और इस फिजिकल एड्रेस पे एक वेब सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर. जैसे आपका ओएस एक सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम आपका एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसी तरह से ये वेब सर्वर भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेबसाइट को होस्ट करता है, मतलब वेबसाइट को रन कराते रहता है. जैसे ही हम हिट करते हैं तो इस वेबसाइट को वहां उस आईपी एड्रेस पे इसको मिल जाता है. और हर वेबसाइट का एक होम पेज होता है. क्या होता है, होम पेज होता है. जैसे ही हम किसी भी वेबसाइट पे हिट करते हैं, लाइक दैट, जैसे आप LMS पे हिट करते हो, जैसे pwclms.in ऐसे करके हिट करते हो, तो ये क्या किया, आपका होम पेज को खोजा उसके सर्वर पे. तो pwclms.in दैट इज द लॉजिकल एड्रेस, इसका एक आईपी एड्रेस होगा जिसपे कि ये LMS पूरा वेबसाइट होस्ट किया हुआ है, और इस LMS पे ये होम पेज मैप किया हुआ है. तो जैसे ही आप pwclms.in एंटर करते हो, ये आपका होम पेज आपको दिख जाता है. एंड आफ्टर दैट यहाँ से एक डेवलपर के हाथ में ये वेबसाइट है कि इसका फ्लो अब वो कैसा रखता है, लुक एंड फील कैसा रखता है, आगे बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, ये सब कौन तैयार किया, ये डेवलपर तैयार करेगा, जो आप सीखोगे.
आप सीखोगे और इसको करोगे कि कैसे ये पूरा लुक एंड फील तैयार हुआ, और इस लुक एंड फील के साथ क्या एक्शन हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रहा है, कहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, कहाँ पे बटन्स है, कहाँ पे क्या है, ये सब आप डिसाइड करोगे। कैसे करोगे ये आगे हम लोग पढ़ेंगे पूरा। तो आप जैसे ही हिट करते हो वेबसाइट पे, आपको एक होम पेज मिलता है, ठीक है। और होम पेज के बाद आप उसको नेविगेट करवाते हो। नेविगेशन का मतलब होता है कि वेबसाइट पे बहुत सारे हाइपरलिंक्स होंगे, मतलब लिंक्स होंगे जिसको कि हाइपरलिंक्स बोलते हैं। तो वो लिंक्स पे यूजर क्लिक करता जाता है और क्लिक करके वो आगे की ओर नेविगेट करता है, पूरा वेबसाइट ब्राउज करता है या फिर सर्फ करता है। तो वेब सर्वर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे आपको वेब सर्वर के बारे में जानना है, वेबसाइट के बारे में जानना है, होम पेज जानना है, और होम पेज कैसे बनता है, मतलब पूरा वेबसाइट कैसे बनता है। तो वेबसाइट को एक्चुअली बोलते हैं, एक वेबसाइट को डिफाइन करते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। So what is the web pages now? Web pages is like a page where we design and create one user friendly layout, एंड ये पूरा वेब पेज को जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, वेबसाइट जैसे। एंड एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे लोग जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ लिंक। लिंक आप देखते हो जैसे ही आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और अगर वहां लिंक है तो वो हैंड का सिग्नेचर आ जाता है। दैट मीन्स कि दिस सेज कि देयर इज अ लिंक, एंड इफ यू क्लिक ऑन दैट लिंक इट विल टेक यू टू द फर्दर पेजेस। सो standalone pages all together makes a website. सो पेजेस को जोड़ते जाना है और वेबसाइट बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमको वेब पेज बनेगा कैसे, और वेब पेज बनाने के लिए वो क्या लैंग्वेज है, क्या टूल्स है, ये अब हमको सीखना पड़ेगा। तो वेब पेज जो बनता है, कोई भी एक पेज बनाने के लिए आपको क्या क्या जानना चाहिए। एंड ये पेज क्या है, ये पेज कहलाता है फ्रंट एंड, क्योंकि ये यूजर को दिखता है, फ्रंट से दिखता है। बैक में क्या हो रहा है ये अभी आपको आगे थोड़ा सा पता चलेगा, मैं अभी बताऊंगा कि बैकग्राउंड में क्या होता है। लेकिन फोरग्राउंड में क्या हो रहा है, मतलब जब यूजर हिट किया और ये होम पेज आया तो यूजर को तो यही दिख रहा है। जनरली आप अगर यूजर हो तो आपको तो यही दिखेगा, बट इसके पीछे क्या कोड लिखा हुआ है, ये आप कैसे लिखोगे, किस तरीके से लिखना है, कैसे इसको सजाना है, ये सब हमको सीखना है। तो ये कैसे सीखेंगे, तो इसको करने के लिए, कोई भी एक वेब पेज बनाने के लिए यानी फ्रंट एंड डिजाइन करना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड डिजाइन कैसे करेंगे, फ्रंट एंड डिजाइन हमको सीखना हो। तो इसको करने के लिए जो फ्रंट में डिजाइन होता है, इसके लिए आपके पास कुछ लैंग्वेज है जो आपको हेल्प करता है। तो व्हाट आर दोज लैंग्वेजेस, तो उसमें से आप एक पार्ट का थोड़ा सा शुरुआती स्टेज आपने देखा है, दैट इज नोन एज HTML। ठीक है, HTML जैसे आपने बोला कि HTML सर हम लोगों ने सीखा है, कितना सीखा है वो आगे अभी पता चलेगा। एंड यू हैव टू लर्न, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, बिकॉज जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई भी लैंग्वेज तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। आज पढ़ा देंगे कल भूल जाओगे। तो जो कुछ भी यहाँ पे, ये पूरा प्रैक्टिस वाला इन्वायरमेंट, जैसे मैथ के अगर स्टूडेंट होंगे तो उनको बोला जाता है मैथमेटिक्स क्या है, प्रैक्टिस का चीज है, साइंस क्या है, प्रैक्टिस का चीज है। जब तक नहीं करोगे, नहीं एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं, तब तक तुम्हारा रिजल्ट या प्रूफ नहीं कर पाओगे कि तुमने कुछ करा। इन द सेम वे ये पूरा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है और पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो वॉट एवर आई टीच यू, जस्ट यू प्रैक्टिस इट एटलीस्ट वंस to know, to understand, to learn how this happening and how I am going to learn that. तो सबसे पहला आपको लैंग्वेज मिलेगा, दैट इज HTML। इट स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला लैंग्वेज मिलेगा, इसी से फ्रंट एंड तैयार होता है। अब बोलोगे कि ये लैंग्वेज तो है लेकिन इतना सारा डिजाइन कैसे हो रहा है, और इतना सारा कलर फॉन्ट और सब बहुत अच्छे से तरीके से किसी भी वेबसाइट का रहता है, जैसे इस वेबसाइट का है, या अपने ही कॉलेज का वेबसाइट अगर देखोगे तो भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ है,
कलर कलर वगैरह दिया हुआ है, या फिर और भी बहुत सारा वेबसाइट तुम डेली रूटीन में ब्राउज करते होगे। बहुत सारा गवर्नमेंट का वेबसाइट है, बहुत सारा प्राइवेट वेबसाइट है, बहुत सारा कंपनी का वेबसाइट है, लाइक दैट। तो तुम देखते होगे कि इतना सारा वेबसाइट है और सबका लुक एंड फील बहुत अच्छा आता है। तो ये लुक एंड फील सिर्फ HTML से तो नहीं बन रहा होगा। इतना अच्छा बैंड लगा हुआ है, कलर लगा हुआ है, फॉन्ट लगा हुआ है एंड ऑल दैट। तो ये कैसे आ रहा है? तो इसका सपोर्ट करता है CSS। इसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल सेट। कैस्केडिंग स्टाइल सेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये पूरा स्टाइल बनाने के काम में आता है। जैसे फॉन्ट कौन सा यूज करेंगे, कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या यूज करेंगे, फोरग्राउंड कलर क्या यूज होगा, फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, फॉन्ट बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, जस्ट लाइक यू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन द वर्ड। कैसे हम डॉक्यूमेंट को सजाते हैं, इन द सेम फैशन आपको वेब पेज को अब सजाना है। तो सिर्फ HTML से आप नहीं सजा सकते। HTML आपको सिर्फ ऐसा लैंग्वेज है जो आपको एलिमेंट्स देता है, टैग्स देता है, और उस टैग से हम कौन सा कंटेंट कहाँ रखना है ये हम तय कर सकते हैं। बट वो कंटेंट कैसा दिखेगा वो हम करेंगे CSS के थ्रू। CSS क्या है? जस्ट लाइक योर कॉस्मेटिक्स। ये इसको पूरा कॉस्मेटिक है। जैसे तुम सजते होगे, सजाने के लिए तुम्हारे पास वैरायटी ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे भी आपका जो लेआउट है, उस लेआउट को एकदम सजाना है। तो कैसे सजाएंगे? तो विद द हेल्प ऑफ CSS सजाएंगे। कलरफुल, ब्यूटीफुल डिजाइन एंड यूजर फ्रेंडली। आज के समय में UI के साथ UX भी आता है टर्म। आप अगर सुने होंगे, अगर टेक्निकली थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो UI एंड UX। UI का मतलब है फ्रंट एंड, एंड UX का मतलब होता है फ्रंट एंड में यूजर फ्रेंडली। यूजर को सब कुछ समझ में आना चाहिए कि कौन सा लिंक कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा बटन हमको कब क्लिक करना है, ये सब UX का पार्ट होता है। तो UI एंड UX दोनों को हमको इन दोनों से मिलाकर बनाना है। अब बोलोगे कि बहुत सारे जगह पे तो देखते हैं सर, बहुत सारा डायनेमिक फीचर्स भी आता है। जैसे यहीं पे डायनेमिक फीचर्स देखो, ये क्या है? देखो, माउस ओवर ले गए और ये पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। जहां भी है, जहां होगा वहां आएगा, जहां नहीं होगा वहां नहीं आएगा। तो ये डायनेमिक फीचर बोला जा रहा है, इसको बोलते हैं डायनेमिक फीचर। तो ये कैसे आ जाता है भाई? ये भी तो किसी तरह से आना चाहिए। तो ये HTML CSS के थ्रू हम ये नहीं ला सकते। HTML CSS क्या करेगा? आपका डिजाइन बताएगा, कौन सा पार्ट कहाँ रखना है और उसको कैसे सजाना है। यहां तक समझ में आ गया? विद द हेल्प ऑफ HTML से रखेंगे और CSS से उसको डिजाइन कर देंगे। बट ये सब, ये देखो कितना अट्रैक्टिव फीचर्स है। और भी बहुत सारे जगह पे अट्रैक्टिव कुछ कुछ होगा। यहाँ पे उतना अट्रैक्शन नहीं है। बहुत सारा वेबसाइट होता है जिसमें बहुत सारा, जैसे ये देखो, ये है ना, माउस ओवर पे ये इस तरह का बहुत सारा अट्रैक्शन देखते होगे और बहुत सारा डायनेमिक यूटिलिटी देखते होगे। इस तरह का बहुत सारा वेबसाइट में आपको मिलता होगा। तो इसको अब करने के लिए मेरे पास दूसरा एक लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड, जो आपने अभी कुछ लोगों ने बोला, दैट इज जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ये हम कर सकते हैं। ये पूरा डायनेमिक फीचर्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और भी बहुत सारा वेबसाइट देखोगे वहां पे भी, जैसे मेन्यू ओवर पे देखो, ये 2 लेयर मेन्यू है, यहाँ पे भी लिंक है और इसके नीचे फिर उसका कैटेगरी लिंक है। तो ये सब पॉपअप मेन्यू इतना सारा आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? फिर इसका देखो ऊपर कैरोजल्स चल रहा है, ये पूरा बैनर चलते रहता है। बैनर कैसे चलता है? देखो, ये बैनर चेंज हो गया है, पूरा सब डायनेमिक है। तो ये डायनेमिक जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, एंड इसका एक हायर वर्जन है दैट इज नोन एज jQuery। jQuery आपने सुना होगा नाम, और इसका बहुत एडवर्टाइजमेंट भी आते रहता है, बहुत सारे चैनल पे एडवर्टाइजमेंट आता है। चैनल कहने का मतलब बहुत सारा वेबसाइट। तो jQuery इसका एडवांस वर्जन है। jQuery के थ्रू हम लोग बहुत सारा डायनेमिक मूवमेंट अपने वेबसाइट पे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एक और टेक्नोलॉजी है एजेक्स। एजेक्स का भी हम लोग यूज करते हैं कुछ डायनेमिक फीचर्स कंटेन करने के लिए, या कुछ बैकग्राउंड पे प्रोसेस करके सर्वर से वापस लाने के लिए। तो ये जितना भी मैंने बताया, ये सब फ्रंट एंड यूटिलिटी है, और ये सब क्लाइंट साइड पे मैक्सिमम काम करता है। क्लाइंट साइड कहने का मतलब ब्राउजर, सर्वर साइड कहने का मतलब
वेब सर्वर जो यहाँ पे है। सर्वर साइड करने का मतलब वेब सर्वर, क्लाइंट साइड करने का मतलब ब्राउजर, जो ब्राउजर है, जैसे ये मेरा क्रोम ब्राउजर है और क्रोम ब्राउजर पे देखो ये सब काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि हर बार ये सर्वर पे जा रहा है और ये मेन्यू लेके आ रहा है, सर्वर पे इतना हिट नहीं कर सकते हम। तो ये सर्वर पे नहीं जा रहा है, ये सब क्या है आपके क्लाइंट साइड पे लोड हो गया। क्लाइंट साइड करने का मतलब आपका ब्राउजर, ब्राउजर पे ये सब लोड हो गया। तो ये सब लोड करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, एजेक्स। सब डायनेमिक मूवमेंट देता है। और HTML CSS से क्या करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं और कंटेंट को सजाते हैं। तो ये सब क्या है, फ्रंट एंड डिजाइनिंग टूल्स है, लैंग्वेज है, और ये सब मिक्सचर है इस तरह से। तो क्योंकि यहाँ पे देखो आपको ये लैंग्वेज मिला, ये भी एक तरह से लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट भी लैंग्वेज है, जेक्वेरी भी लैंग्वेज है, एजेक्स एक टूल्स है जो कि मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है। यहाँ पे एजेक्स को बोलते हैं एसिंक्रोनस, ये है ट्रांसफर मोड, जावास्क्रिप्ट एंड XML। इतना बड़ा है। तो देखो एसिंक्रोनस क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ डाटा है। जावास्क्रिप्ट क्या है, जस्ट लाइक ए लैंग्वेज, जैसे मैंने ऊपर बोला जावास्क्रिप्ट है। XML क्या है, डाटा कंटेनर है, कंटेन करता है डाटा। तो ये फ्रंट एंड में आपको इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब सिखाएंगे आपको एक एक करके, स्टार्टिंग फ्रॉम HTML आप लोगों ने कुछ कुछ सीखा है, उसको कैरी करते हुए CSS कुछ बताएंगे, जावास्क्रिप्ट कुछ बताएंगे, फिर jQuery बताएंगे, फिर एजेक्स बताएंगे। ठीक है। नाउ फॉर द सर्वर साइड। सर्वर साइड दैट मीन्स कि जैसे आपका LMS है, यहाँ पे आप जैसे काम करते हो, इस पे बटन पे क्लिक करते हो, यहाँ कुछ भरते हो, और यहाँ भरने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो। लॉगिन बटन पे जैसे ही क्लिक हुआ, ये डाटा कहाँ जाएगा, ये डाटा जाएगा सर्वर पे। और सर्वर पे चेक करेगा कि जो आपने भरा है वो सही है और आपके नाम का कोई डाटा सर्वर पे है, मेरे डाटाबेस में है। और अगर है तो आप लॉग इन कर पाओगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे रॉन्ग यूजर आईडी, पासवर्ड लाइक थिंग्स जैसे मैसेज आता है आएगा। तो सर्वर साइड पे क्या हो रहा है, सर्वर साइड पे क्या करना होगा, ये भी आप ही करोगे, मतलब एज ए डेवलपर आपको ही करना है, कोई दूसरा नहीं करने आएगा। तो सर्वर साइड पे आपको चाहिए होगा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तक ये सब जो लैंग्वेज था ये सब स्क्रिप्टिंग टाइप का लैंग्वेज था और इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज था। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज कहने का मतलब कि ये ब्राउजर पे इंटरप्रेट हो जाएगा, इसको कहीं भी कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। इसका जो भी रन टाइम इन्वायरमेंट है वो ब्राउजर है, ब्राउजर ही इसको समझता है। लेकिन सर्वर साइड में प्रोसेसिंग की जरूरत है, और प्रोसेसिंग के लिए हमको प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। जैसे आपने सुना होगा C++, जावा, .NET, लाइक दैट। तो यहाँ पे हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगा, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग एक लैंग्वेज यूज करेंगे, दैट इज C#। इसको C# लिखते हैं लेकिन बोला जाता है C#। ये .NET का पार्ट है, मतलब हम लोग .NET यहाँ पे कवर करेंगे। एंड देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ एक टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगा, तो ये टेक्नोलॉजी होगा ASP.NET। क्योंकि सर्वर साइड पे कैसे काम करना है ये टेक्नोलॉजी बताएगा, इट इज अ टेक्नोलॉजी जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है। इसी तरह से डिफरेंट मार्केट में टेक्नोलॉजी है, जावा के लिए भी अलग है, PHP का नाम सुने होंगे, अभी तो पाइथन बहुत फेमस है, पाइथन का भी नाम सुने होंगे। तो सब ऑलमोस्ट वेब टेक्नोलॉजी के रूप में यूज होता है, तो ये भी है वेब टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो सर्वर साइड पे हमको क्या चाहिए होगा, एक लैंग्वेज चाहिए होगा जिसमें हम प्रोग्राम करें, लॉजिकल कोड करें, और एक टेक्नोलॉजी चाहिए होगा जिसके थ्रू हम उस लॉजिकल कोड को एग्जीक्यूट कराएं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट कराएं, जो कि सर्वर साइड टेक केयर करेगा। तो फ्रंट साइड हो गया एंड सर्वर साइड हो गया। अब बात आती है कि अगर हम डाटा भी यूज करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि यहाँ पे अगर क्लिक करें तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड कहीं तो स्टोर होगा ना कहीं डाटाबेस में स्टोर हो। तो डाटाबेस पार्ट कौन हैंडल करेगा, तो दैट इज कॉल्ड बैकएंड कहा जाता है। और यहाँ पे डाटाबेस का एक रोल आता है, जहाँ पे डाटा क्या होता है, सेव होता है। और उसको सेव करने के लिए, जैसे आप भी बहुत सारा डाटा सर्वर पे डालते हो, जैसे आपका असाइनमेंट अपलोड होता है, तो वो डाटा सर्वर पे कहीं ना कहीं सेव हो रहा है आपके नाम पे, तो ये डाटाबेस में कहीं ना कहीं सेव हो रहा है।
तो डाटाबेस के रूप में हमको किसी ना किसी डाटाबेस को यूज करना पड़ेगा, ये भी सर्वर साइड ही होगा। तो डाटाबेस में हम लोग बहुत सारा डाटाबेस है मार्केट में, जैसे एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, ओरेकल, तो इस तरह का डाटाबेस है जो मार्केट में यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर या माई एसक्यूएल, या फिर इससे एक छोटा डाटाबेस आता है जो कि जनरली एजुकेशन में यूज होता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सब पेड वर्जन होता है ऑलमोस्ट। माई एसक्यूएल सिर्फ फ्री है। तो यहाँ पे एमएस एक्सेस, दिस इज द पार्ट ऑफ योर एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में ये डाटाबेस आपको मिल जाता है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके साथ साथ एमएस ऑफिस भी आता है, एक्सेस भी आता है। तो एमएस एक्सेस हम वहां से पिक कर सकते हैं एंड उसको एज ए डाटा स्टोरेज यूज कर सकते हैं, डाटा स्टोरेज एप्लीकेशन है। तो सी हाउ मच वी हैव टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर वेब डिजाइनिंग कंसेप्ट सीखने के लिए। फ्रंट एंड वी हैव टू लर्न दिस मच, server side we need to learn this much, and for the database we need to learn MS Access, because वो सब database आपको थोड़ा हैवी होगा। यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों स्टूडेंट है, तो we will go through the MS Access, and this complete course, if you name it as today naming convention, this is called full stack development, full stack web development actually, not only development, web development, and इसको अगर आगे modify करना है using this is actual name nowadays, जो आप मार्केट में देखते होंगे बहुत लोग कि आज के समय में जो कोर्स का नाम है वो अभी के नेम ये वेब डिजाइन कोर्स बहुत पहले का शुरू किया हुआ है। सो एट दैट टाइम ओनली डिजाइनिंग पार्ट इज देयर, बट नाउ इज डेज इट बिकम्स द फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स फॉर यू, बट द नेम इज सेम बिकॉज वी दिस इज आवर legacy name. So we haven't changed the name, but we have changed the content. Its content is now rich one. So we have to learn this much, and within 3 to 4 months we are going to learn, and we have to create one project at last. So we have to create project, and we are going to host that project. Means those who are having good project, those who are able to create good project, I'm going to host your project and you will view your website live. तो यहाँ पे यहीं पे खत्म नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग वेब होस्टिंग भी आपको बताते हैं, जो कि शायद आपका सिलेबस में मेंशन है कि नहीं, ये नहीं कर सकते, बट वेब होस्टिंग आई एम गोइंग टू गिव यू द डेमोन्स्ट्रेशन हाउ विल होस्ट आवर वेबसाइट, दैट इट विल ब्राउज थ्रू दिस ब्राउजर पे, हम उसको ब्राउज कर सके जस्ट लाइक जैसे हम किसी डोमेन को ब्राउज करते हैं, इधर वो LMS का हो गया या फिर पटना वुमेन्स कॉलेज या google.com या जो कुछ भी तुम खोलते हो, हाउ दिस विल ओपन फ्रॉम इंटरनेट यू विल गोइंग टू लर्न. So any question? Are you able to, are you able to Yes, sir. get it now? Yes, sir. The point is clear? Yes, sir. Yes. So I think today time is almost complete. So we will start with that HTML part, and I will give you just the glimpses of that, because I hope you have done some classes through ma'am. So I'm going to give you the glimpses of HTML, how it works, and where we write that code. I don't मैम ने कहाँ कोड लिखने के लिए बताया आपको, कहाँ कोड लिख रहे हो और रन करा रहे हो? Notepad. 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 Okay. So basically Notepad is a great editor, no doubt, and it's it's all-in-one editor for the code. But if we are going to create a professional website, or we have to learn professional development, so we need one IDE, that is known as integrated development environment. We need one IDE, integrated development environment, like that. So for this IDE, and because we are going to learn the .NET environment, so Microsoft give you a Visual Studio.
So you need to download